الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع نماز ہے۔ آئیے اس پاکیزہ اور بابرکت پروگرام کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ آمنت بالله، صدق الله العظيم۔ جزاکم اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، آئیے اب ہم نماز کے فرائض کے حوالے سے جانتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں صرف نماز کے فرائض اور پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ نماز کے واجبات، اس کی سنتیں باقی آئندہ ویڈیوز کے اندر شیئر کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ نماز کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل بھی دیگر ویڈیوز کے اندر ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیے جائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے نماز کے فرض جانتے ہیں۔ نماز کے فرائض میں نماز کے
7 فرض ہیں، صاحب ہدایہ نے 6 لکھے، باقی تمام فقہاء کرام نے 7 فرض لکھے ہیں۔ پہلا فرض اللہ پاک نے فرمایا وَكَبِّرُوا تَكْبِيرًا، تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کر کے ہم جب ہاتھ باندھتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ دوسرا فرض قیام ہے، قوموا للہ قانتین۔ تیسرا فرض رکوع ہے، اور چوتھا فرض سجدہ ہے، وارکعوا واسجدوا وارکعوا مع الراکعین۔ اور چھٹا فرض آخری قاعدہ، آخری التحیات مکمل پڑھنا، عبدہ و رسولہ تک نہیں، مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھنا، یہ فرض ہے آخری قاعدہ۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک سے ثابت ہے، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے تشہد کے لیے پہلے آپ نے تشہد کے بارے میں بتایا، پھر اس کے بعد سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد پڑھنے کے بعد ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ پھر آقا کریم علیہ السلام نے درود پاک بھیج کر بتایا کہ اس طریقے سے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ سنت طریقے کے مطابق کوئی بھی قرآن و حدیث سے ثابت دعا جو ہے وہ آپ مانگیں۔ یہاں تک ہم نے فرض جانے۔ اس کے بعد 7واں فرض سلام پھیرنا ہے، خروج بسنعہ، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام پھیرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام پھیرنا ہے۔ آئیے اب ہم نماز پڑھنے کا طریقہ کار جو ہے وہ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے آپ نے دونوں ہاتھ یوں کانوں کے قریب کرنے ہیں، جس طرح آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں، کانوں کے قریب کرنے ہیں۔ ہاتھ بالکل ہتھیلی ایسے یوں سیدھی ہو، یوں آسمانوں کی طرف، اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف یوں نہ ہو۔ کانوں کی لو کے ساتھ آپ کے انگوٹھے ٹچ ہونے چاہیے، قبلہ رو آپ کی ہتھیلی ہو۔ پھر اس کے بعد یوں ہاتھ اللہ اکبر کہا، سیدھا ہی اللہ اکبر، یعنی آپ کی اللہ جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگانے سے شروع ہو، کانوں کی لو سے شروع ہو، بر کی را پر آپ کے ہاتھ جو ہے وہ ناف کے نیچے بند جانے چاہیے۔ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ عزیز آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا، پریکٹس کرنے سے یہ چیز آتی ہے۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ کار کیا ہے، آپ ویڈیو میں بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی میں بھی بتا دیتا ہوں کہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ کار یہ ہے، مرد حضرات اپنے ہاتھ کی کلائی کو دوسری کلائی پر رکھیں گے اور انگلی سے اور انگوٹھے، چھوٹی انگلی چنگلیاں اور انگوٹھے سے کڑا بنائیں گے، یوں کڑا بنا لیں گے۔ بعض کا ہاتھ بڑا ہے، چھوٹا ہے، کلائی کے حساب سے ہوتا ہے، کہیں کہیں یہاں پکڑ، جہاں بھی مطلب پکڑنا مقصود ہے انگلی اور انگوٹھے سے، اور 3 انگلیاں یوں سامنے ایسے سامنے رکھیں گے۔ اس طریقے سے آپ ہاتھ باندھیں گے ناف کے نیچے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات بتائی کہ وہ لوگ جن کو نماز کے اندر وسوسے آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، ان سے التماس ہے کہ وہ ناف کے نیچے جب ہاتھ باندھے تھوڑا سا دبا کر رکھیں، تھوڑا سا، زیادہ زور تو نہیں، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، شریعت تو نرمی کی قائل ہے کہ مناسب معتدل طریقہ ہو، معتدل قسم کا، لیکن اگر وسوسے آپ کے خیالوں میں آتے ہوں تو آپ تھوڑا سا دبا کر رکھیں، تو اس سے وسوسے نیچے کی طرف جب آتے ہیں تو وہ نیچے نہیں آتے، اوپر ہی رہ جاتے ہیں، اور انسان نماز اچھے طریقے سے جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد بعض اوقات بہت سارے ساتھی نماز میں اللہ اکبر، الف کو کھینچنا نہیں ہے، الف مد آ نہیں کرنا، لام کو آپ کھینچ سکتے ہیں، اللہ اکبر لمبا کر سکتے ہیں، اللہ اکبر بھی نہیں کر سکتے، اللہ اکبر نہیں کر سکتے، صرف سیدھا اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ کی لام کو کھینچ سکتے ہیں، نہ الف کو کھینچ سکتے ہیں، نہ با کو کھینچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں تو دونوں قدم
आपके बिल्कुल बराबर सीधे किबला की तरफ हों, दोनों कदमों के दरमियान 4 उंगल का फासला हो, 4 उंगल। इससे ज्यादा ये मुस्तहब अमल है, इससे ज्यादा अगर हो जाए तो कोई हरज नहीं, अमरे मजबूरी, बहुत ज्यादा खोलना भी मुनासिब नहीं, खूबसूरत नहीं लगता, आसान अमल नहीं। फिर उसके बाद आप जब रकू की तरफ जाएं तो यूं लोग यूं ऐसे हाथ छोड़कर रकू में जाते हैं, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सीधा यहाँ हाथ बांधें तो सीधा रकू में जाएं, या तकबीर कही तो तकबीर के बाद यूं ऐसे हाथ छोड़कर, ये ऐसे करना ऐसे पीछे की तरफ, ये जायज नहीं। हाँ, ऐसे हाथ छोड़कर या इस तरह नॉर्मली तरीके से बांधने में कोई हरज नहीं, लेकिन मुस्तहब अमल यही है कि यहाँ से सीधा हाथ ऐसे रखें और सीने पर बांध लें, नीचे नाक के नीचे बांध लें। औरतों के लिए हुक्म क्या है कि वो अपना दायां हाथ बाएं हाथ की पुश्त के ऊपर यूं रखें, सीने के ऊपर, अपने कपड़े के अंदर यूं कपड़े के अंदर छुपा लें ताकि पर्दा रहे। मकसद क्या है औरतों की नमाज में? पर्दा मकसूद है। वो अल्लाह पाक जो सफा मरवा पर औरतों को दौड़ने नहीं देता, नमाज में जो है वो पर्दे का ख्याल रखता है। तो आज हमारी औरतें सरेआम बाजार के अंदर बेहयाई का मंजर पेश करते हुए नजर आती हैं। अल्लाह पाक इन सबको हिदायत अता फरमाए। सीने पर यूं हाथ बांधेंगी, फिर रकू के अंदर जाते वक्त जब आप रकू में जाएंगे तो रकू में मर्द हजरात बिल्कुल बराबर रकू करेंगे और औरतों के लिए थोड़ा सा मामूली सा झुक जाना ही काफी है ताकि पर्दा रहे। फिर उसके बाद दोनों हाथ घुटनों पर रखने हैं और यूं बाहर नहीं निकाल लेंगे, ये चीज बिल्कुल ऐसे बराबर हो, यूं ऐसे नहीं निकली होनी चाहिए। जब आप रकू में चले जाएं तो दोनों हाथों के साथ यूं घुटनों को पकड़ लें, घुटनों को पकड़ लें और 3 उंगलियां सामने से और 2 साइड पर से, इसी तरह दोनों घुटनों को मजबूती से पकड़ लें। यूं ऐसे करना या दोनों हाथ एक तरफ निकाल देना, अंगूठे और पूरे पंजे से पकड़ना, इस तरह मुनासिब नहीं, बल्कि पूरी उंगलियों को यूं फैलाकर अंगूठे को घुटने को पकड़ना, ये पकड़ना चाहिए। फिर उसके बाद आप जब सामी अल्लाहु लिमन हमिदा कहें, कोमा करें। कोमा के लिए आप थोड़ी देर ठहरें, थोड़ी देर ठहरें तो पूरी तसल्ली के साथ कहें सामी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, पूरा कलमा जो है वो अदा करें। और सामिया से आप रकू से उठना शुरू करें, हमिदा की हा पर जो है आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाए। बाज़ हज़रात यूं आगे की तरफ थोड़ा सा झुक के खड़े होते हैं, नहीं, बिल्कुल पूरा सीधा खड़े हो जाएं। तो फिर उसके बाद क़याम में भी बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं, यूं झुक कर नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। बाद लोग यूं कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हो रहे होते हैं, ऐसा जायज नहीं। फिर उसके बाद आप सजदे के अंदर जाएं। सजदे में आपका सबसे पहले आपका घुटना लगे नीचे, फिर उसके बाद आपके दोनों हाथ, फिर उसके बाद आपका नाक नीचे जमीन पर लगे और फिर पेशानी। और फिर जब उठना है तो उठते वक्त यही तरतीब होगी, पहले माथा, फिर नाक, फिर दोनों हाथ और फिर घुटना, ये तरतीब होगी यानी कि उठने की भी। और जब आप सजदे में जाएंगे तो आपने करना ये है कि सजदे के अंदर आपके 10 की 10 उंगलियां पाँव की वो नीचे लगी हुई, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, पूरी की पूरी उंगलियां जमीन पर लगी हुई। यूं पाँव की उंगलियों की नोक लगाना या 1-2 उंगलियां नीचे टच करना, ऐसा नहीं। 6 उंगलियों का पेड़ तो जमीन पर टच करना वाजिब है। जमीन का वो, जमीन के ऊपर पाँव की उंगलियों का वो हिस्सा लगाना है जो जमीन के साथ टच रहता है, उसे जमीन के साथ टच रखना है। तो 6 उंगलियों का तो लगाना वाजिब है, पेट लगाना, बाकी जो है उस कोशिश करेंगे वो भी पूरी लग जाए। शुरू शुरू में तो आपको दिक्कत पेश आएगी, लेकिन बाद में आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। और फिर उसके अलावा सजदे में आप उंगलियां नॉर्मल रखेंगे, यूं बंद करके ऐसे फैलाकर नहीं, नॉर्मल यूं बंद करके ऐसे, यूं बंद करके फैलाकर नहीं, बिल्कुल नॉर्मल उंगलियां रखेंगे। और नाक जो है और आंखें, ये दोनों अंगूठों के बिल्कुल दरमियान में आए। फिर उसके बाद दोनों कोनियां बाहर की तरफ निकली हुई हों, ये जगह बगलें जो है बिल्कुल खाली होनी चाहिए। लेकिन औरतों के लिए ये तरीका कार नहीं है। औरतों के लिए दोनों पाँव एक तरफ निकालने हैं, दोनों पाँव एक तरफ निकालने हैं बैठकर, फिर उसके बाद सजदा करना है और अपनी कोहनियों को
पेट के साथ लगा लेना है, पहलुओं के साथ, और पेट आपका रंग के साथ लग जाना चाहिए और सर जो है वो सजदे में हो। इसमें औरतों के लिए पर्दा है। फिर उसके बाद जब आप उठे तो दोनों सजदों के दरमियान जलसा करें। बाज़ हज़रात यूं यूं कर रहे होते हैं, सजदे में गर्मी हो तो यूं यूं करके वो कमीज के साथ झाड़ झाड़ कर जनाब वो हवा ले रहे हैं, कोई किसी के पास रुमाल है तो यूं यूं कर रहे हैं, कोई यहाँ कर रहा है। बस इस तरह का काम नहीं है, ये शरीयत इस चीज़ को की इजाज़त नहीं देती, तो ये शरीयत के खिलाफ है। तो 3 मरतबा अगर आपने ऐसा किया तो ये अमले कसीर हो जाएगा, नमाज टूट जाएगी। तो अगर कपड़ा वगैरह कोई आपका ये बाज़-औक़ात कपड़े यूं रुकू में जाते वक्त यूं खींच कर समेट लेते हैं, एक कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से, ऐसा भी जायज़ नहीं है। आप बिल्कुल नॉर्मली कपड़ा जो है वो जिस तरह है वैसे ही रहने दें और रुकू सजूद करें। हाँ, अगर बअमरे मजबूरी कपड़ा आपका अटक गया है तो आप उसे एक हाथ के साथ या उसको झाड़ सकते हैं या सीधा कर सकते हैं, मामूली सा, तो इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन यूं कपड़े को खींच कर पूरी तरह ऊपर की तरफ उठाना ये जायज़ नहीं है। तो आप जब 2 सजदों के दरमियान बैठेंगे, इसे कहते हैं जलसा। 2 सजदों के दरमियान आप पूरी तरह किबला की तरफ आपकी उंगलियां होनी चाहिए हाथों की, ना हाथ यूं ऐसे उंगलियां आगे घुटने की नीचे लटकी हों, ना बहुत ज्यादा पीछे, बल्कि घुटने जहां एंड हो रहे हैं वहां से आपकी हाथों की उंगलियां वहां तक हों और बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में आप बिल्कुल हाथों को ढीला छोड़ें। और फिर उसके बाद आप 45 का अक्द करें, यानी अशहदु अल्लाह के ऊपर यूं उंगली उठाएं। 45 का ये है कि ये दोनों उंगलियां, इन दोनों उंगलियों को यूं लपेट लेना है और ये बड़ी उंगली और अंगूठे को का हल्का बना लेना और शहादत की उंगली से गवाही देनी है। अशहदु अल्लाह इलाहा पर जो है ये उंगली नीचे गिरा देनी है। इसका मकसद सिर्फ ये है, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और इसको रफ़ा सबाबा कहते हैं। मुस्लिम शरीफ के अंदर इसके बारे में तफसीली बहस आई है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं इसके बारे में तफसीली बताऊंगा। मेन बात सिर्फ ये है कि ये नफी है कि जब अशहदु अल्लाह ला के साथ नफी की जा रही है, लेकिन इशारा अल्लाह पाक की तरफ की, अल्लाह तेरी नफी नहीं कर रहा है, बाकी तमाम जो माबूद हैं उनकी नफी कर रहे हैं। इलाहा पर गिरा देनी है, ला इलाहा पर उठानी है, इल्ला पर इल्लल्लाह पर गिरा देनी है कि अल्लाह सिवाय तेरे। ला इलाहा पर उंगली उठानी है, अल्लाह तेरी नफी नहीं है, बाकी जो माबूद हैं उनकी नफी कर रहे हैं। फिर इल्लल्लाह पर गिरा देनी है, नीचे उंगली बराबर कर लेनी है। ये सुन्नत तरीका है। उसके बाद सलाम फेरें। सलाम फेरते वक्त दाएं बाएं जब आप सलाम फेर रहे हैं, सलाम फेरने के लिए आप सिर्फ यूं अपने कंधे की तरफ देखेंगे और बाएं कंधे की तरफ देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब दोनों तरफ कहेंगे तो कंधे की तरफ देखना है। यूं बाद लोग यूं देखते हैं, एक तरफ सलाम फेरा तो यूं यूं आगे होकर देखने लग बड़ा कौन कौन आया, फिर दूसरी तरफ देखा, फिर देखा यहाँ कौन कौन बैठा। नहीं, तरीकाकार ये नहीं है, बल्कि अपने कंधे की तरफ देखें और दूसरे कंधे की तरफ देखें और फिर उसके बाद जब आप फारग हो जाएं तसल्ली से दुआ करें। अब तकबीर तहरीमा जब कही जाती है, तकबीर तहरीमा के लिए नीयत कैसे बांधनी है, ये भी एक सवाल आता है कि नीयत कैसे बने। नीयत में बाद लोग जो है वो नीयत करते हैं। अब अगर आप इमाम के पीछे हैं तो नीयत इसी तरह ही करेंगे कि 4 रकत नमाज फर्ज अल्लाह ताला की, मुंह तरफ खाने काबे शरीफ के पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, ये तरीका कार। बाज लोग जब ये कहते हैं ना मुंह तरफ खाने काबे शरीफ के, तो अगर ये ना भी कहा जाए तो कोई हरज नहीं। नीयत दिल की होती है, जुबान की नहीं होती। अगर दिल में वो नियत किया हुआ है जी मैं असर की नमाज पढ़ रहा हूँ, 4 रकत नमाज फर्ज जो है वो असर के, और नियत नमाज इशा की रहा हो, ठीक है, ये इमाम के पीछे इशा की नमाज पढ़ रहा है, दिल के अंदर नियत असर की है, तो वो नमाज नहीं होगी। मतलब क्या है, इकरारुम बिल लिसान और तस्दीकुम बिल कल्ब होना चाहिए। तस्दीकुम बिल कल्ब जरूरी है, यानी दिल से जो है वो तस्दीक होनी जरूरी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर भी यहाँ एक छोटा सा मसला मैं औरतों के लिए बता दूं कि अत्तहियात के अंदर औरतें जो हैं वो दोनों पाँव एक तरफ निकालेंगी, बैठेंगी। आप वीडियो में देख सकती हैं कि इसी तरीके से जिस तरह दोनों सजदों के दरमियान में बैठना है, इसी तरह दोनों पाँव एक तरफ जो है अत्तहियात में भी निकाल कर बैठना है। बाकी बहुत सारी औरतों को ज़हन में होगा कि जिस तरह मर्द यूं उठाकर सीना जो है सुरीन उठाकर जो है ऊंचा सजदा देते हैं, हदीस शरीफ में भी इसी तरह आया है, तो औरतों को ऐसे क्यों इजाज़त नहीं है, आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, या आप शरीयत के खिलाफ करते हैं। ये बहुत सारे उल्टे सीधे सवालात जो है वो हमारी औरतों के ऊपर जो है वो डाले जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर
میں ان تمام سوالوں کے جوابات کو پوری کوشش کروں گا قرآن و حدیث کے ساتھ. میں قرآن پاک کے ذریعے سے اور حدیث مبارکہ کے ذریعے سے نماز کے ایک ایک رکن کی جو ہے وہ وضاحت کروں گا کہ کہاں کہاں کس کس طریقے سے آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے، اور عورتیں اس طرح نماز پڑھیں. وہ پوری مکمل جو ہے تفصیلی بحث ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.